आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत ने 4 मंडलों में दलित बंधु के लिए 250 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिनमें चिंताकनी, तिरुमलगिरी, चारकोंडा और निज़ाम सागर शामिल हैं। कल 250 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए चिंताकनी मंडल के लिए और 50 करोड़ रुपए तिरुमलगिरी, चाराकुंडा और निज़ाम सागर के लिए जारी किए गए थे। दरियासना SC कारपोरेशन ने ज़िला कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वो इस स्कीम पर अमल आवारी के लिए SC मरदमशुमारी करें। इससे पहले हुकूमत ने एक बयान में कहा कि वो दलित बंधु पर 3000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। रियासत में दलित बरादरी को बाइख्तियार बनाने के लिए ऐलान करदा ताज़ा तरीन फ्लैगशिप प्रोग्राम का एक हिस्सा है। वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह फौरी तौर पर तेलंगाना के किसानों के साथ जारी The farmers of Telangana state have staged a dharna yesterday all over the state protesting against the decision of Government of India. The FCI, the Government of India's organization, has already given orders saying that they are not going to procure boiled rice from the state of Telangana anymore. But the paddy that is grown in Telangana during Rabi season, exclusively it is meant only for boiled rice. No fine rice is grown during the second season. And the area that the paddy is being cultivated in Telangana is enormous and very huge when compared to the other states of the country. And in northern states, paddy cannot be cultivated in the second season, in the Rabi season, because of the climatic conditions. Only southern states, more particularly the Telangana state that has large area. The farmers of Telangana state have staged a dharna yesterday all over the state protesting against the decision of Government of India. The FCI, the Government of India's organization, has already given orders saying that they are not going to procure boiled rice from the state of Telangana anymore. But the paddy that is grown in Telangana during Rabi season, exclusively it is meant only for boiled rice. No fine rice is grown during the second season. And the area that the paddy is being cultivated in Telangana is enormous and very huge when compared to the other states of the country. And in northern states, paddy cannot be cultivated in the second season, in the Rabi season, because of the climatic conditions. Only southern states, more particularly the Telangana state that has large arable area to cultivate paddy. Government of India should encourage paddy that is being cultivated in Telangana and try to regulate how best they can procure and how best they can proportionately distribute among the different states, be needed to export to the other countries. Instead of that, Government of India has come forward saying that farmers, you don't have to cultivate this. This is a sort of draconian decision we oppose, and farmers of Telangana have been demanding Government of India to declare that second crop paddy that is meant for boiled rice shall be procured, or alternatively Government of India should incentivize the farmers to go for the diversified crops which are suitable, and that assurance and that guarantee shall be there from Government of India only for diversification of the crops. Since the whole regulatory system that lies with the Government of India and the power is vesting with the Government of India, though the agriculture is in the concurrent list, but the many of the aspects that are determined by Government of India, example MSP, example transportation, example regulating through FCI, example exporting to various countries, all these regulatory systems are lying with Government of India. वज़ीर सेहत हरीश राव ने नीलोफर दवाखाने में 100 बिस्तरों वाले ICU वार्ड का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत के हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज कायम करने का मंसूबा रखते हैं और हर मेडिकल कॉलेज में 1000 बिस्तर वाला दवाखाना कायम किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मुल्क और रियासत में कोरोना की तीसरी लहर आए या ना आए ये तो कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज़ी महकमे सेहत की दी गई हिदायतों पर अमल करने के सिलसिले में 120 करोड़ रुपए मंजूर करते हुए रियासत के तमाम दवाखानों में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के सिलसिले में तमाम तर इक़दाम करने की हिदायत दी। वज़ीर सेहत हरीश राव ने नीलोफर हॉस्पिटल में किए जाने वाले इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने नीलोफर दवाखाने में ICU वार्ड्स और बेड्स में इजाफा करने के अलावा असरी आलात की खरीदी व दीगर काम के लिए 33 करोड़ रुपए मंजूर किए। को मुखातिब होकर कहा कि हुकूमत सरकारी दवाखाने में हर तरह की सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है, बस डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला वक्त पर ड्यूटी अंजाम देते हुए मरीजों का इलाज करने पर तवज्जो दें। షాద్నగర్ ఆదిలాబాద్ ఏమైంది కిడ్నీ ప్రాబ్లం చిన్న బాబు కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఏమ్మా డాక్టర్ ఎవరు చూస్తున్నారు అంటే నీకు అప్పుడు చెప్పిందా పీజీకి ఎవరిని అడిగించినా పీజీ అమ్మాయి వస్తుంది చెప్పండి అమ్మా వాట్స్ ఏం చేస్తున్నారు ఈ అమ్మాయి అబ్బాయి అమ్మాయి नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्रेगनेंसी अनाचार का एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट भी में పొందారు। ఎన్ని రోజులైందమ్మా వచ్చి 9 తారీఖు ఇవాళ 14 3 రోజులు 4 రోజులు అయింది। ఏం ఐడెంటిఫై చేసి ఉన్నటువంటి గౌరవ కార్పొరేటర్లు, గౌరవ శాసనసభ్యులు, ముఖ్యంగా మా డాక్టర్స్, నీలోఫర్ ఆసుపత్రి సిబ్బందికి, ఐసీఐ నుంచి వచ్చినటువంటి టీంకు, నిర్మాణం నుంచి వచ్చినటువంటి టీంకు, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారం। చాలా సంతోషం, మరి హైదరాబాద్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అసోసియేషన్ ఐసియా నిర్మాణ్ సంయుక్తంగా మరి కరోనా నేపథ్యంలో సెకండ్ వేవ్ తర్వాత థర్డ్ వేవ్ ను ఎదుర్కోవడానికి పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను బలోపేతం చేయడానికి తమ సిఎస్ఆర్ నిధుల నుంచి దాదాపు 18 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్రంలో మరి ఆసుపత్రులకు అందించినందుకు ముందుగా ఐసియాకు హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను। దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు మనకు ఓపెన్ టెక్స్ట్ నుంచి 1,10,00,000 రూపాయలతో మన నీలోఫర్ ఆసుపత్రిలో ఉండేటువంటి ఐసీయూను అప్గ్రేడ్ చేయడానికి మరి వారు సహకరించారు। ఐ సిన్సియర్లీ థ్యాంక్ ఓపెన్ టెక్స్ట్ ఎండి అండ్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్। అదేవిధంగా మరి మీతో కూడా మా ఐసీఆర్తో కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మీరు ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు, ఏదైనా ఒక ఆసుపత్రిని అడాప్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఒకసారి మా ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్తో మీరు డిస్కస్ చేసి ఆసుపత్రి ఏదై అవసరమో అది ఇవ్వగలిగితే మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది। కొంత మాకు అప్పుడప్పుడు అనుభవం ఏమొచ్చిందంటే, మొన్న ఈ ఆక్సిజన్స్ అవి ఇచ్చారు కాన్సన్ట్రేటర్స్, అవి చాలా చోట్ల పెద్దగా ఉపయోగపడతలేవు। ఆ కాన్సన్ట్రేటర్స్ మీరు ఇస్తున్నారు కానీ వీళ్ళు తీసుకుపోయి రూమ్ లో పెట్టేస్తున్నారు। ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రతి బెడ్ కు ఆక్సిజన్ సౌకర్యం ఇచ్చేసినాం మేము। 100% ఎవ్రీ బెడ్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ బై ఆక్సిజన్। సో హాస్పిటల్ వైజ్ కూడా మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఆల్రెడీ ఓన్ ఆక్సిజన్। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, साबिक नायब वजीर आला दामोदर राज नरसिम्हा, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, सियासी उमूर कमेटी कन्वीनर मोहम्मद अली शब्बीर, रुकने कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कांग्रेसी कायदीन ने उन्हें आला कमान की जानिब से दहली तलब करने पर दहली के लिए रवाना हुए। आला कमान ने इन कायदीन को हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इलेक्शन में पार्टी की शिकस्त की तफसीलात पेश करने की हिदायत दी। पार्टी ज़राए के मुताबिक आला कमान इस बात को लेकर फ़िक्रमंद है कि कांग्रेस में 2018 में मुनक़िद होने वाले आम इंतखाबात में दूसरे पोजीशन पर थी, जबकि ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार बी वेंकट को सिर्फ 3,000 वोट हासिल हुए और ये अपनी ज़मानत तक नहीं बचा सके।
कौमी सदर ओबीसी बीजेपी मोर्चा डॉक्टर लक्ष्मण की क़ियादत में बीजेपी ओबीसी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हैदराबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, कौमी ओबीसी बीजेपी कायद ए भास्कर और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास को डॉक्टर लक्ष्मण और बंडी संजय ने खिताब करते हुए रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि टीआरएस हुकूमत बीसी तबक़ात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रही है, जबकि मरकज़ी हुकूमत बीसी तबके की तरक्की के लिए कई इक़दाम कर रही है। మరి ఓబీసీ మోర్చా క్రియాశీలకంగా క్షేత్రస్థాయి నుంచి పనిచేసిన నాడే అది మనకు సాధ్యమవుతుంది. ఈరోజు చాలా అంశాలు తెర మీదకి వస్తూ ఉన్నాయి. ఓబీసీ మోర్చా కార్యకర్తగా నాయకుడిగా ఇవాళ మనము పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఈ 7 సంవత్సరాల్లో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వము ఈ సమాజంలో 54% ఉన్న జనాభాకు ఈ 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దేశంలో ఏ ప్రభుత్వాలు కానీ ఏ ప్రధానమంత్రి కానివ్వండి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయాలు, చాలా మరి ప్రాముఖ్యత సంతరించుకున్న నిర్ణయాలు, అనేక దశాబ్దాలుగా బీసీలు సంఘటితంగా పోరాటం చేస్తున్నటువంటి ఆ సమస్యలను పరిష్కార రూపంలో చేయడమే కాకుండా చట్టరీత్యా కూడా నిర్ణయాలు తీసుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందంటే అది నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం మాత్రమే, బీజేపీ ప్రభుత్వం మాత్రమే. 75 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర దేశంలో 60 సంవత్సరాలు ఈ దేశాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలించింది. ఈ 60 సంవత్సరాల్లో ప్రధానంగా 40 సంవత్సరాల పైగా ఒకే కుటుంబం. పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ 17 సంవత్సరాలు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు. ఇందిరాగాంధీ 11 సంవత్సరాల పైగా, రాజీవ్ గాంధీ, ఈ రకంగా 40 సంవత్సరాలు ఒక కుటుంబం పాలించి 60 సంవత్సరాలు ఈ దేశాన్ని కాంగ్రెస్ పాలిస్తే ఏ ఒక్క నిర్ణయం కూడా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత బీసీలకు సానుకూలంగా తీసుకున్న నిర్ణయం ఒక్కటి కూడా లేదు, దాఖలా లేదు. ఇది మనం గర్వంగా చెప్పాలి. ఓబీసీ మోర్చా కార్యకర్తలుగా గంట పదంగా ఇవాళ ఏదైతే మోదీ గారు అంటారో చెప్పన్ ఇంచ్ ఛాతీ తన్కర్ లోగోं के बीच में మనం ఏదైతే చెప్పాల్సిన అవసరాలు ఉన్నాయో అది చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने इंदिरा पार्क धरना चौक के पास किसानों के मसाइल को लेकर 72 घंटे की पूर्वबाटा दीक्षा एहतजाज मुनज़्ज़म किया और उसे मुखातिब करते हुए मरकज़ की बीजेपी और रियासत की टीआरएस हुकूमतों पर तनकीद करते हुए बताया कि मरकज़ और रियासत टीआरएस बीजेपी कायदीन किसानों से धान की ख़रीदारी को लेकर न सिर्फ तमाशा कर रहे हैं, बल्कि धान की खरीदारी न करते हुए किसानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आंजहानी वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी किसानों को 20% बोनस देने के इक़दाम करते थे और आज भी छत्तीसगढ़, कर्नाटका और दीगर रियासतों में किसानों को बोनस देने के इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन रियासत की टीआरएस हुकूमत इस तरह के इक़दाम न करते हुए तेलंगाना के किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने बताया कि आंजहानी वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी किसानों को बारीक चावल की काश्त के लिए 300 रुपये फ़ी कुंटल महज इसलिए फ़राहम करते थे कि बारीक चावल की काश्त में जोखम होता है, उसमें किसानों का नुकसान ना हो, लेकिन टीआरएस हुकूमत ने इस निज़ाम को भी जारी ना रखा। वाईएस शर्मिला ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी करने के इक़दाम करें। ప్రముఖ శిల్పి చేతిలో హులిలా, అగ్గి నుండి తీయబడిన కొరివిలా, ప్రముఖ శిల్పి చేతిలో హులిలా, గురి తప్పని పాడంలాలు పెరుగని వేగంలా రాయిలా, ఓ షర్మిలా రాయిలా, తెలంగాణలా రాయిలా, ఓ షర్మిలా రాయిలా, తెలంగాణలా. कोरोना वायरस की वबा शुरू होने के बाद से कई लोग वायरस से महफूज रहने के लिए नए नए घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं।
उसी तरह के एक घरेलू नुस्खे ने एक नौजवान की जान ले ली, जबकि इसकी बीवी और मां अस्पताल में शरीक हैं। ये वाक़या तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद का है, जहां अलवाल पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ चंद्रा नगर कॉलोनी का रहने वाला 30 साला सुरेश ने कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए गुज़िश्ता कुछ दिनों से दूध में काला नमक मिलाकर पी रहा था। इसके साथ उसकी बीवी 26 साला बीवी संध्या और 52 साला मां लक्ष्मी भी दूध में काला नमक मिलाकर पी रहे थे। बताया गया कि रमेश के पड़ोसियों ने उसे बताया था कि काला नमक को दूध में मिलाकर पीने से कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं होते। पड़ोसियों के मशवरे पर रमेश इस अमल को शुरू किया था, लेकिन जुमा की रात दूध पीने के बाद तीनों की तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तबीयत बिगड़ने पर उसे गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान सुरेश की मौत हो गई और उसकी मां और बीवी का इलाज जारी है। हैदराबाद पुलिस को 4 नवंबर को पंजागुट्टा में द्वारकापुरी कॉलोनी में दुकान के सामने 5 साला लड़की की लाश दस्तयाब हुई थी। पुलिस ने इस केस में तहकीकात करते हुए लड़की के कत्ल का सुराग लगाया और पुलिस ने लड़की की मां समेत 3 अफराद को राजस्थान से गिरफ्तार करते हुए हैदराबाद मुंतकिल किया। पुलिस ने लड़की की लाश दस्तयाब होने पर इब्तिदाई तौर पर शुबा जाहिर किया था कि लड़की का किसी और मुकाम पर कत्ल किया गया, जिसके बाद लाश को इस इलाके में फेंक दिया गया। दिवाली त्यौहार और अमावस के मौके पर दस्तयाब होने वाले कमसीन लड़की की लाश पर मुकामी अफराद ने काले जादू का शुबा जाहिर किया था। पुलिस ने इस बात को मुस्तरद कर दिया क्योंकि लाश के जिस्म पर कोई निशान और गला कटा हुआ नहीं था। पुलिस ने इस केस को कत्ल के तौर पर देखा और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस केस में सुराग हासिल करते हुए लाश फेंकने वाले शख्स की शनाख्त की और तहकीकात करते हुए राजस्थान से मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि लड़की की मां ने इतराफ़ किया कि उसके गैर अज़दवाजी ताल्लुकात का इल्म होने पर उसने लड़की का कत्ल कर दिया है। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। ज़िले करनूल में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सेहत की देखभाल करने की खातिर सहूलत की कमी की वजह से देही अवाम से भाग रहे हैं। यमगनूर मंडल के देहातों में सैकड़ों आरएमपी क्लिनिक खुल चुके हैं। यमगनूर मंडल के तकरीबन तमाम गांव दूर दराज इलाकों में हैं और लोग नाखानदा हैं। यहाँ तक कि उनमें से अक्सर देहातों में मुनासिब नकलो हमल की सहूलियात भी नहीं हैं। इन देहातों का बुनियादी ज़रिया ज़रूरी मजदूरी के तौर पर रोटी और मक्खन कमाना है। कुछ गांव जो मंडल के कोने कोने पर वाक़ हैं उनमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर उनके पास PHC हैं तो ये रात के औकात में काम नहीं करता है। इमरजेंसी की सूरत में लोगों को यमगनूर या अदूनी सरकारी इलाकों के अस्पतालों तक पहुँचने के लिए कम से कम 30 से 40 किलोमीटर का फासला तय करने का ख़तरा मोल लेना पड़ता है। देहातों में PHC की कमी के लिए RMP क्लिनिक कायम करने का बाज़ बनी हुई हैं। एक मोतबर ज़राए ने बताया कि हालिया दिनों में मंडल में 50 से ज़्यादा क्लिनिक कायम किए गए हैं। एक बनाला राजू जो एक सरकारी स्कूल में अंग्रेज़ी शुबे के लेक्चरर हैं और यमगनूर के मनियापा नगर के रहायशी हैं, ने मीडिया को बताया कि हालिया दिनों में अपने RMP दिनों में कई क्लिनिक कायम किए हैं और इलाज में तोसी की, अगरचे के एक उसूल है कि RMP को सिर्फ बुनियादी इलाज में ही कोशिश करनी चाहिए। वो तमाम बीमारियों के इलाज कर रहे हैं। मालूम हुआ है कि RMPs भारी मकदार में दवाएं तजवीज़ कर रहे हैं और ज़्यादा खुराक के इंजेक्शन दे रहे हैं। तिबी नुमाइंदों से हासिल करदा मरीज़ों को अच्छे RMP नमूना गोलियां देकर खासी रकम कमा रहे हैं। निज़ामाबाद और कामारेड्डी अज़ला में ख़ास तौर पर जुक्कल बोधन मंडल इलाके में हालिया दिनों में हर जगह भंग पकड़ी गई है। नागपुर, हैदराबाद, कौमिशारा, सलाबतपुर और सलवा चेक पोस्ट स्मगलिंग के लिए अहम रास्तों के तौर पर कायम किए गए। कुछ गैर कानूनी अफराद नौजवानों को अपने माल में लालच देते हैं और उन्हें मंशियात के आदी बना देते हैं। अगर मुसद्दक़ा इत्तला है तो जासूस पकड़े जा रहे हैं। बसूरत दीगर भंग नेशनल हाईवे के ज़रिए सारिफिन तक पहुँचाई जाती है। विशाखापट्टनम एजेंसी, छत्तीसगढ़ एजेंसी, खम्मम और मुलुगु भंग के फसल की पैदावार निज़ामाबाद कामारेड्डी रास्तों से मुल्क भर में फैलने के लिए स्मगलिंग का एक अहम रास्ता बन गई हैं। ये जुमला 12 अक्टूबर को कामारेड्डी ज़िले के जुक्कल मंडल के तहत विजयखंडी गांव में और दीगर मुकामात पर ये भंग के 68 पौधे पकड़े गए। एक्साइज पुलिस ने एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 25 अक्टूबर को पुलिस ने कामारेड्डी पिटलम मंडल के कंभापुर गांव में चक्काली विठल के घर पर गैर कानूनी तौर पर उगने वाले भंग के 60 पौधे जब्त किए थे।
उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पेड्डा कोडा पागल मंडल में अंजानी चौरस्ते पर भंग पकड़ी गई। शादी के 2 हफ्ते कबल एक लड़की का गैंगरेप करते हुए उसकी फिल्म बंदी करके वीडियो और तस्वीर उसके होने वाले शौहर को व्हाट्सएप पर भिजवाए गए। ये शर्मनाक वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर में 5 नवंबर को पेश आया, जिसका ताख़िर से इल्म हुआ। मौज़े कोतलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साल लड़की महबूब नगर आकर मजदूरी का काम किया करती थी। 18 अक्टूबर को उसकी शादी तय थी। काम पर जाने के दौरान उसकी मुलाकात राजू से हुई। उसने किसी और मुकाम पर काम दिलवाने के बहाने अपने दोस्त अंजनेलू के साथ लड़की को एक मुकाम पर ले जाकर शराब पिलाने के बाद उसकी असमत रेजी की और इस हरकत की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हुए उसे व्हाट्सएप के ज़रिए मुतासरा के होने वाले शौहर को भिजवा दिया। वो पुलिस से रुजू हुए। पुलिस ने मुलजिमान राजू और अंजनेलू को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।